चलिए जी, हमारा आज का टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड्स एंड यू नो व्हाट आर द टू मेन टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स. दे आर RNA एंड DNA, which are present in every living organism. Even viruses, they have either DNA or RNA as their genetic information. आज हमने जो अपना टॉपिक करना है दैट इज अबाउट स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ RNA. सो व्हाई इट इज नोन एज RNA, it stands for ribonucleic acid. And you know the main difference between ribonucleic acid and DNA means deoxyribonucleic acid. That is because of ribose sugar present in them. In RNA, ribose sugar is present, that is D-ribose, while in DNA it is deoxyribose, means carbon number 2 instead of OH, just H is present. That's why in DNA the sugar is deoxyribose. So RNA is just like DNA. It is also polynucleotide. Polynucleotide means it is made up of many subunits, many mononucleotides. यानी mononucleotides फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के साथ एक दूसरे से अटैच होते हैं एंड दे फॉर्म अ लॉन्ग चेन. और वो जो लॉन्ग चेन है दैट इज polynucleotide. Then is these nucleotides, mean the nucleotides present in RNA, they are ribonucleotides. And why they are ribonucleotide? Obviously हम बार बार कहते हैं कि इसके अंदर राइबोस शुगर प्रेजेंट है. और जो न्यूक्लियोटाइड्स विच आर फॉर्मिंग RNA या RNA पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन जब ब्रेक होती है और उनके न्यूक्लियोटाइड्स को फर्दर ब्रेक किया जाता है तो हमें क्या मिलता है? देयर आर नाइट्रोजनस बेसिस. एंड यू नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, pyrimidine and purines. While we talk about RNA, what type of purine bases present in them in RNA? That are adenine and guanine. While we talk about the other pyrimidine bases that are in RNA, they are uracil and cytosine. Means thymine base is not present in RNA. Along it's the main difference. It is one of the difference between RNA and DNA, that in RNA thymine base is not present, but instead of thymine uracil base is present. The second difference between RNA and DNA is the presence of ribose sugar, that is D-ribose in RNA, while deoxyribose in DNA. What is D-ribose? आपने कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर में डी एंड एल आइसोमर्स के बारे में पढ़ा हुआ है. सो यू आर अवेयर ऑफ द डिफरेंस बिटवीन डी राइबोज एंड आप ये भी पढ़ा है ना, जैसे डी मोस्टली जो डी फॉर्म्स होती हैं दे आर नेचुरली अकरिंग फॉर्म. एंड द थर्ड element, the third thing in nucleotide is phosphoric acid. So the nucleotides forming RNA, they are basically consist of three subunits. Here I am sharing a table from your biochemistry book. So here is the comparison, and while we compare RNA and DNA, we also know some of the characteristics or some of the properties of RNA. So here I will only focus on the characteristics or properties of RNA. The nitrogenous bases, purine bases, adenine and guanine are present in RNA, while cytosine and uracil pyridine bases are present. Then relative amount of complementary bases means हाईली वेरिएबल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे आपको पता है वो उसमें वेरिएबल है. जिस तरह DNA डबल स्टैंडर्ड है उसमें होता है कि A इज ऑलवेज इक्वल टू T, यानी जितने एडेनिन प्रेजेंट होंगे उतने ही थायमिन प्रेजेंट होंगे DNA में, और DNA में जितना ग्वानिन प्रेजेंट होंगे उतने ही साइटोसिन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि वो आपस में बेस पेयरिंग करते हैं. लेकिन ऐसा कोई रूल RNA पर अप्लाई नहीं होगा. उसकी अमाउंट डिफरेंस हो सकती है. एडेनिन ज़रूरी नहीं है थायमिन के बराबर हो, दे कैन वेरी. अब इसी तरह से शुगर की हम बात करते हैं तो शुगर क्या है? राइबोज. RNA में और DNA में है 2 deoxyribose. Why they are mentioning 2 here? Because at 2 it is there is one oxygen less, mean instead of OH just H is present. Phosphoric acid is present in them. So here these are the three main component of nucleotide or ribonucleotide. Now RNA. Main location of RNA is in cytoplasm. Although it is synthesized inside nucleus and nucleolus, but then it travels to the cytoplasm where it performs its function for protein synthesis or for, and it also plays some other roles like gene regulation. Some of them act as enzyme. So they are mainly present in cytoplasm, but they are synthesized inside nucleus with help of DNA. How RNA is formed? Actually, DNA coded informations are converted to RNA
nucleotide sequence of RNA, and that process is known as transcription. If we look at the molecular weight, that they are much smaller than DNA, and molecular shape, RNAs are single stranded polynucleotides, while the DNA is double stranded. But although they are single strand, but still आरएनए समटाइम अपने ही ऊपर उसका आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड प्रेजेंट भी हो, तो समटाइम आरएनए का सिंगल स्ट्रैंड अपने ही ऊपर फोल्ड होकर बेस पेयरिंग कर सकता है, और एक आरएनए के अंदर कहीं कहीं हमें डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स नजर आ सकते हैं। और जो हमें एक आरएनए मॉलिक्यूल में कहीं कहीं डबल स्ट्रैंडेड रीजन नजर आ रहे हैं, दे आर रिलेटेड टू देयर फंक्शन। जब हम उसमें देखेंगे तो अभी आप आगे जाके ट्रांसफर आरएनए का स्ट्रक्चर देखेंगे तो उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर, किस तरह से वो अपने ही ऊपर कॉइल होते हैं और कहीं कहीं डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स बना देते हैं। सो हियर इज द स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, आपके टॉपिक में है ना स्ट्रक्चर, तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को देखते हैं। सबसे पहली बात ये कि हियर इज द सिंगल न्यूक्लियोटाइड। अब इस सिंगल न्यूक्लियोटाइड में देखिए ये डी राइबोज शुगर प्रेजेंट है, इसके कार्बन नंबर 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच है, दैट इज यूरासिल, और ये यूरासिल का है नाइट्रोजन नंबर 1। और इसी तरह से कार्बन नंबर 5 के साथ, ये कार्बन नंबर 5 है जो आपको CH2 नजर आ रहा है ना, ये वाली कार्बन है कार्बन नंबर 5, और इसके साथ अटैच है फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, अब ये था सिंगल न्यूक्लियोटाइड, सिंगल राइबो न्यूक्लियोटाइड। अब ये एक न्यूक्लियोटाइड है जिसको हम, क्योंकि इसमें यूरासिल बेस प्रेजेंट है तो हम इसको यू से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसके साथ एक दूसरे न्यूक्लियोटाइड अटैच है, राइबो न्यूक्लियोटाइड, जिसमें ग्वानिन बेस अटैच है, तो हम इसे जी से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसमें भी सेम स्ट्रक्चर है। हाँ, ये है कि प्यूरीन है, तो प्यूरीन भी कार्बन नंबर 1 के साथ अटैच होती है, बट इसका नाइट्रोजन नंबर 9 है वो अटैच होता है। अब इसके बाद आप देखिएगा ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, राइबोन्यूक्लियोटाइड है। अब एक राइबोन्यूक्लियोटाइड दूसरे राइबोन्यूक्लियोटाइड के साथ कैसे अटैच है, ये देखिए। कार्बन नंबर 3 पर जो ऊपर की तरफ न्यूक्लियोटाइड है, इसके कार्बन नंबर 3 पर OH ग्रुप प्रेजेंट था, जिस OH ग्रुप ने फॉस्फोरिक एसिड के साथ एस्टर लिंकेज की। ठीक है, यहाँ पे ये होगी एस्टर लिंकेज। एस्टेरिफिकेशन का प्रोसेस आपने बार बार पढ़ा है कि एस्टेरिफिकेशन क्या होती है, एसिड अल्कोहल रिएक्शंस आपने पढ़े हैं। तो यहाँ पे भी क्या है, OH ग्रुप प्रेजेंट था राइबोस पर, ये था फॉस्फोरिक एसिड, और इन्होंने यहाँ पर की एस्टर लिंकेज। ठीक है, अब आप देखें कि एक फॉस्फोरिक एसिड जो है वो एक तरह से दो राइबोस के साथ अटैच है, एक राइबोस के कार्बन नंबर 3 के साथ और दूसरी राइबोस शुगर के कार्बन नंबर 5 के साथ। इसी तरह से हम थर्ड वन में भी देखते हैं। अब यहाँ पर यह आ जाता है थर्ड न्यूक्लियोटाइड, अगेन सेम है। ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड में यहाँ पर साइटोसिन प्रेजेंट है, इसकी कार्बन नाइट्रोजन नंबर 1, राइबोस का ऑलवेज कार्बन नंबर 1 है उसके साथ अटैच है, और कार्बन नंबर 5 पर जो फॉस्फोरिक एसिड है वो ऊपर वाले न्यूक्लियोटाइड के 3 पर जो OH ग्रुप फ्री था उसके साथ ग्रुपिंग कर रहे हैं एस्टर। अब देखें दो तरह से, इसलिए दोनों तरफ से अटैच हो रहा है ना, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी। एक राइबोस की 3 कार्बन, दूसरे राइबोस की 5 कार्बन, तो इसलिए हम कहते हैं ये डाई एस्टर लिंकेज है। तो हम इसको कह देते हैं कि जी फोस्फोडाई एस्टर। डाई का क्या मतलब होता है, 2। तो देखें ना, ये डाई एस्टर बॉन्ड नहीं बन रहा है, 2 बॉन्ड्स नहीं बन रहे, डाई का मतलब 2 है ना। तो देखें एक तरफ 3 प्राइम पर, दूसरी तरफ 5 प्राइम कार्बन पर, तो इसलिए हम इसको कहते हैं फोस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब एक और बात आपने ये देखनी है कि इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में फॉस्फोरिक एसिड हमेशा दोनों तरफ से अटैच है राइबोस शुगर के साथ, एक्सेप्ट फॉर द एंड। जहां पर एंड है वहां पर जस्ट फॉस्फोरिक एसिड का ये एक ही राइबोस से अटैच होगा, अदरवाइज जितने भी उसके बाद है उनमें फॉस्फोरिक एसिड 2 राइबोस के साथ अटैच है। तो जहां पर ये फ्री यानी यहाँ पर ये फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, इसके साथ मजीद और कोई ये एक ही राइबोस के साथ अटैच हो, तो हम इसे कहते हैं 5 प्राइम एंड। और 3 प्राइम एंड क्या होगा, ये 3 प्राइम एंड वो होगा जहां पर OH ग्रुप प्रेजेंट है और यहाँ पर एक और न्यूक्लियोटाइड आकर अटैच हो सकता है टू एस्टर लिंकेज। तो ये एक तरह का स्ट्रक्चर है। अब मोस्टली हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो फॉस्फोरिक एसिड अटैच होता है वो कहाँ पर आकर होगा, वो 3 प्राइम पर होगा, लेकिन ये भी चांसेस हैं कि कहीं कहीं 2 प्राइम पर भी आकर अटैच हो जाए, बट मोस्टली 5 होगा। और इस तरह से हम इसको कहते हैं 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है।
अभी जब हम पिक्चर कंपेयर कर रहे थे आरएनए की एंड डीएनए की, तो वहां पर हमने एक बात की थी कि डीएनए इज अ डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर while RNA is a single stranded structure. But at the same time we said although RNA is a single stranded structure, but there is possibility कि RNA अपने ही ऊपर फोल्ड होकर कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग कर ले और वो अपने ही और एक आरएनए मॉलिक्यूल के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि कहीं पर सिंगल स्ट्रैंड रीजन प्रेजेंट हो और कहीं पर उसने अपने साथ ही बेस पेयरिंग करके डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स बना दिए हों। अब यहाँ पर है कि मोस्ट आरएनए मॉलिक्यूल्स आर सिंगल स्ट्रैंडेड बट एन आरएनए मॉलिक्यूल मे contain regions which can form complementary base pairing where the RNA strand loops back on itself। और बात क्या करने, जब भी अगर डबल स्ट्रैंड फॉर्म बना भी रहे हैं तो स्टिल कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ही होगी। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्या है कि साइटोसिन हमेशा ग्वानिन के साथ बेस पेयरिंग करेगा और 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे और एडेनिन यूरासिल के साथ करेगा और 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएंगे। इन दिस केस आरएनए मॉलिक्यूल विल हैव सम डबल स्ट्रैंडेड रीजन्स, मींस मेनली सिंगल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है बट देयर मे बी सम डबल स्ट्रैंडेड रीजन। राइबोसोमल आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए सम मैसेंजर आरएनए एग्जिबिट सेकेंडरी स्ट्रक्चर, यानी हम देखेंगे अब आगे ट्रांसफर आरएनए में देखेंगे। सो देयर इज द एग्जांपल, देयर इज अबाउट हाउ दे हैव डबल स्ट्रैंड रीजन। यू कैन सी हियर it's a single polynucleotide, it's a single polyribonucleotide of RNA। it's basically single stranded। देखेंगे single stranded regions है बट कहीं कहीं उन्होंने कहा किया हुआ कुछ रीजन पे उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की है। ए यूरासिल के साथ कर रहा है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ कर रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर एक मॉलिक्यूल आरएनए का जो है उसके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड रीजन भी प्रेजेंट है और कहीं कहीं कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पर बेस पेयरिंग हुई है और वो डबल स्टैंडर्ड है। नाउ यू आर क्लियर अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए कि आरएनए का स्ट्रक्चर कैसा है, आरएनए की प्रॉपर्टीज क्या हैं, आरएनए की ब्रेक डाउन करते हैं तो जो न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं उनके सब यूनिट्स क्या हैं, कैसे राइबोस शुगर है। नाउ देयर आर टाइप्स ऑफ आरएनए। There are 3 main types of RNA named as messenger RNA, transfer RNA and ribosomal RNA. Messenger RNA carries message for genetic information। DNA से सारे के सारे RNA कैसे बनेंगे, सारे के सारे RNA DNA से ही बनेंगे through the process of transcription। Messenger RNA क्या करता है, it carries message for sequence of amino acids in protein। ट्रांसफर आरएनए क्या करेगा, ये जब प्रोटीन बनने का प्रोसेस होता है उसमें ये अमाइनो एसिड को पकड़ पकड़ कर लाएगा पॉलीपेप्टाइड चेन में, देखेगा कि अच्छा कौन सा अमाइनो एसिड यहाँ पे लगना है, वो अमाइनो एसिड लेकर आएगा। और राइबोसोमल आरएनए क्या करेगा, इट्स द पार्ट ऑफ राइबोसोम्स और राइबोसोम्स के साथ पार्ट ऑफ राइबोसोम है और राइबोसोम में जब ये मौजूद होगा तो ये वहाँ पर क्या करेगा, प्रोटीन बनाने के प्रोसेस में हिस्सा लेगा। इस तरह हम देखें कि तीनों ही तरह के ये जो आरएनए है ये किसी न किसी तरह प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व हैं। देन अब सबसे पहले टाइप हम पढ़ते हैं, दैट इज मैसेंजर आरएनए। अब मैसेंजर आरएनए अगर हम ओवरऑल देखें कि एक सेल के अंदर कितना आरएनए प्रेजेंट है टोटल, तो उसमें से जो मैसेंजर आरएनए है वो उसका टोटल 5 to 10% जो है टोटल आरएनए, उसमें से 5 to 10% होगा मैसेंजर आरएनए। Why messenger RNA is important? Because it encodes the amino acid sequence of one or more polypeptide specified by gene or set of the gene। पॉलीपेप्टाइड्स क्या है, अमाइनो एसिड्स की चेन है और ये आगे जाके पॉलीपेप्टाइड जो है आगे जाके प्रोटीन बनाते हैं, फिर एंजाइम्स का हिस्सा बनते हैं और सो ऑन। तो इस तरह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ये इनकोड है और इसमें इनकोडिंग जो है इसमें आपको पता चलेगा कहीं पर जीन में म्यूटेशन हो जाए तो अमाइनो एसिड सीक्वेंस में चेंज आ जाएगा एंड दे मे लीड टूवर्ड्स सम हार्मफुल रिजल्ट्स, लाइक हार्मफुल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं कि म्यूटेशन हार्मफुल हो सकती है। तो इनमें क्या है कि जो मैसेंजर आरएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, इट टेल्स अबाउट द अमाइनो एसिड सीक्वेंस इन पॉलीपेप्टाइड चेन।
और ये ऑब्वियसली ये डीएनए जीन्स आर डीएनए नेचर, तो डीएनए का सीक्वेंस ही असल में बताता है कि आरएनए का सीक्वेंस क्या होगा और फिर अमीनो एसिड का सीक्वेंस क्या होगा। मोस्ट हेट्रोजेनस ऑफ द most heterogeneous of the three types of RNA in terms of both base sequence and size। यानी heterogeneous में बहुत वेराइटी है, इसमें बहुत डिफरेंस है एक दूसरे से। ऑब्वियसली आप इसमें यहाँ पर ये देखें कि अगर राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसफर आरएनए है, तो इन तीनों टाइप्स में से सबसे ज़्यादा वेराइटी जिसमें आरएनए में है दैट इज मैसेंजर आरएनए। क्यों? क्योंकि आप देखें कितनी ही तरह के, हज़ारों तरह की प्रोटीन हमारे अंदर बनती हैं। हज़ारों तरह की प्रोटीन का मतलब यही है कि हज़ारों तरह के मैसेंजर आरएनए बनेंगे तभी तो वो प्रोटीन बन रही है। तो इट्स मीन कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेराइटी है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हैं मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए यूकैरियोट्स इज प्रोड्यूस इन न्यूक्लियस अंडर गाइडेंस ऑफ डीएनए, और इसको हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में होता है। प्रोकैरियोट्स में ये साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है कि इनके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। बट यूकैरियोट्स में क्या होता है कि डीएनए से आरएनए बनता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और देन वो ट्रांसफ़र हो जाता है साइटोप्लाज्म में आरएनए राइबोसोम्स के पास, जहाँ पर वो जाकर पार्टिसिपेट करता है या गाइड करता है पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में। After undergoing maturity, messenger RNA leaves the nucleus and enters साइटोप्लाज्म where it gets associated with ribosome। अब ये मेच्योरिटी से क्या मुराद है? मेच्योरिटी से ये मुराद है कि जब वो मैसेंजर आरएनए डीएनए से आरएनए बनता है तो वो एज इट इज साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर नहीं होता, उसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशंस होती हैं। एक मॉडिफिकेशन जो होती है कि आपने माइक्रोबायो के दौरान पढ़ा था इंट्रॉन्स और एक्सॉन्स के बारे में। इंट्रॉन्स क्या होता है? डीएनए के अंदर जो इंटरवल्स आ जाते हैं ना, जो कोडिंग नहीं करते किसी चीज़ के लिए, तो जब मैसेंजर आरएनए में वो इंट्रॉन्स आ जाते हैं तो स्प्लाइसिंग के थ्रू उन इंट्रॉन्स को, या जो इंटरवल्स होते हैं जो आगे हिस्सा नहीं लेंगे इस कोडिंग में, तो उनको रिमूव कर दिया जाता है, कटिंग कर दी जाती है। तो जो स्टार्ट में मैसेंजर आरएनए बनता है वो ज़्यादा मीन्स कि उसकी लेंथ ज़्यादा होगी। जब उसमें से इंट्रॉन्स की कटिंग करके निकाल देंगे तो वो छोटा हो जाएगा। देन उसके 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड दोनों पर चेंजेस किए जाते हैं ताकि जो मैसेंजर आरएनए है वो सेफली ट्रांसफ़र हो जाए साइटोप्लाज्म में। अगर वो चेंजेस नहीं होंगी उसके 5 प्राइम और 3 प्राइम एंड पर, तो ये पॉसिबिलिटी है कि व्हाइल इट इज़ ट्रांसफरिंग फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म तो कोई एंजाइम उस पर अटैक कर दे और जो मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस था वो शॉर्ट हो जाए और डाटा वो इंफॉर्मेशन लॉस हो जाए पॉलीपेप्टाइड चेन के बारे में। 3 consecutive base messenger RNA act as codon for various amino acids। जेनेटिक कोड आपने पढ़ा है कि जो 3 बेसिस का सीक्वेंस जो है वो एक अमीनो एसिड को कोड करता है। सो देयर इज अ जनरल डिस्क्रिप्शन के जी रेप्लिकेशन आपको पता है क्या होती है। अब रेप्लिकेशन से कि डीएनए की जब ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में वो आरएनए बनाता है, मींस ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि डीएनए कोडेड इन्फॉर्मेशन आरएनए कोडेड इन्फॉर्मेशन में चेंज हो जाती है। और उसके बाद ये जो प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स की जो लैंग्वेज है वो अमीनो एसिड्स की लैंग्वेज में कैसे चेंज हो रही है, मीन्स न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है वो अमीनो एसिड के सीक्वेंस में चेंज हो रहा है, प्रोटीन बन रही है। यहाँ पर मेंशन है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन हमने पढ़ी थी माइक्रोबायो में कि ये कुछ वायरसेस करते हैं, वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बनाते हैं जिसके रिजल्ट में आरएनए कोडेड इंफॉर्मेशन डीएनए कोडेड इंफॉर्मेशन में चेंज हो सकती है। बट मोस्टली जो हमारे अंदर है वो यही है कि रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। देन देयर फर्दर इंफॉर्मेशन अबाउट मैसेंजर आरएनए। अभी हमने पढ़ा था ना कि जो मेच्योर मैसेंजर आरएनए की चेन है वो ट्रांसफर होती है न्यूक्लियस टू आरएनए साइटोप्लाज्म। वो मेच्योरिटी के बारे में कुछ मैंने बताया हुए थे कि इसमें थोड़ी एडिटिंग होती है, चेंज होती है। तो वो जो चेंजेस आते हैं ना जिसके रिजल्ट में वो जो प्री मैसेंजर आरएनए है वो एक मेच्योर चेन में चेंज होता है, उसको हम कहते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसिंग। पोस्ट में ट्रांसक्रिप्शनल के बाद ये चेंजेस होते हैं मैसेंजर आरएनए में। As part of post-transcriptional processing in eukaryote, the 5 prime end of the messenger RNA is capped with a guanosine triphosphate nucleotides।
which help in messenger RNA recognition during the translation or protein synthesis. मीन उसके एक एंड पर गुआनिन ट्राइफॉस्फेट ऐड कर दिया जाएगा और क्या क्या अगर उसने जब प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, ट्रांसलेशन करनी है, तो फिर उसकी आइडेंटिफिकेशन हो जाती है कि ओके इट्स अ मैसेंजर आरएनए दैट कैरीज मैसेज फॉर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड एंड पॉलीपेप्टाइड. In the same way, the 3' end of messenger RNA has a poly A tail or multiple adenylate residues added to it, which prevent enzymatic degradation of messenger RNA. अगर नहीं होगा तो चांसेस हैं कि messenger RNA को कोई एंजाइम अटैक करके डिग्रेड कर देगा और उसके बाद क्या होगा कि वो जो सीक्वेंस था कोडोन, कुछ कोडोन लॉस हो सकते हैं और पॉलीपेप्टाइड चेन कंप्लीट नहीं बनेगी. इसलिए एक और एहतियात की जाती है कि पोली ए टेल साथ अटैच कर दी जाए. बोथ 5' and 3' ends of and messenger RNA imparts stability to messenger RNA. So here is the structure of mature messenger RNA, so you can easily understand it. Here is the coding region. कोडिंग रीजन क्या है? इट कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स. इसमें कोडोन प्रेजेंट होंगे. यहाँ पर इसके 5' एंड पर देखें, ये 5' चेन ऐड कर दी है. अभी आपने इसका क्या नाम पढ़ा था? गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट. ये देखें, ये यहाँ पर ऐड कर दी है और इसके साथ इसके जो 3' पर ये कैप, यहाँ पर देखें, इसे आपने 5' कैप कहा था और यहाँ पे 3' एंड पर क्या है? पोली ए टेल. ये देखें एडिनाइलेटेड रेजिड्यूज हैं, ये देखें यहाँ पर प्रेजेंट है और ये इसको स्टेबिलिटी दे रहे हैं. देन अब हम इसमें नेक्स्ट में जाते हैं ट्रांसफर आरएनए. ट्रांसफर आरएनए क्या करता है जी? ट्रांसफर आरएनए ट्रांसफर करता है अमाइनो एसिड्स को. प्रोटीन सिंथेसिस का प्रोसेस जो नो कहाँ पर होता है? राइबोसोम्स पर. अब जो मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में गया है वो भी राइबोसोम्स के साथ जाकर अटैच होगा और जो ट्रांसफर आरएनए वो क्या करेगा? वो रीड करेगा कोडोन सीक्वेंस फ्रॉम मैसेंजर आरएनए. मैसेंजर आरएनए को वो देखेगा और देखेगा अच्छा जी यहाँ पर ये अमाइनो एसिड लगना है. वो ट्रांसफर आरएनए जाएगा साइटोप्लाज्म में से और उसमें से अमाइनो एसिड ढूंढेगा, उसको कैरी करेगा और लाकर वहाँ पर राइबोसोम के पास लेकर आएगा ताकि उसको आगे अटैच किया जा सके पॉलीपेप्टाइड चेन में. So transfer RNA form 10 to 15% of the total RNA of the cell. यानी मैसेंजर आरएनए आपने पढ़ा था ये कि वो 5 to 10% और ट्रांसफर आरएनए 10 to 15% बना रहा है. These are single chain RNA molecules of relatively smaller molecular weight having 73 to 93 nucleotides. There is a separate transfer RNA for each of the 20 amino acids for which they act as the adapter molecule. Now this point is important कि हर अमाइनो एसिड्स के लिए एक अलग ट्रांसफर आरएनए है. अगर ग्लाइसिन को पकड़ के लाना है तो उसके लिए एक अलग ट्रांसफर आरएनए होगा. इसी तरह से किसी और ग्लूटामिक एसिड को लेकर आना है तो उसके लिए एक अलग ट्रांसफर आरएनए होगा. तो बेसिकली 20 डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाने में हिस्सा लेते हैं और हर अमाइनो एसिड को ट्रांसफर करने के लिए एक अलग ट्रांसफर आरएनए मॉलिक्यूल है और वो दे विल एक्ट एज एडेप्टर मॉलिक्यूल. मींस कि ये उसके साथ अटैच हो जाएंगे अमाइनो एसिड्स को और उसको पकड़कर राइबोसोम्स के पास लेकर आएंगे. These RNAs shows base pairing in many regions. These molecules have clover leaf structure stabilized by the hydrogen bonding. ये अभी हम फिगर में भी देखेंगे clover leaf like structures है और आपको इसमें double strand regions भी नजर आते हैं. The molecule of transfer RNA also shows the presence of unusual bases. यानी हमें वैसे तो 4 बेसिक टाइप की पता है ना बेसिस जो मोस्टली प्रेजेंट होती हैं, लेकिन अगर हम ट्रांसफर आरएनए में देखें तो कुछ हमें थोड़ी सी ऐसी बेसिस नजर आते हैं जो नॉर्मली हम उनसे अनयूजुअल कहते हैं कि यानी वो यूरासिल एडेनिन वगैरह से थोड़ा हटकर होंगी. लाइक इसकी एग्जांपल है डाइहाइड्रोयूरासिल, इनोसाइन एंड सूडोयूरासिल. देन आ जाता है ट्रांसफर आरएनए की कुछ और प्रॉपर्टीज हैं. ट्रांसफर आरएनए रीड द इंफॉर्मेशन इनकोडेड इन द मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर एप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड टू अ ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस. ठीक है, वो उसमें से रीड करेगा कौन सा है अमाइनो एसिड वहाँ पे लगना है. मैसेंजर आरएनए में से कोडोन देखेगा, अच्छा जी कोडोन को करके अच्छा ये अमाइनो एसिड चाहिए और उसके बाद वो साइटोप्लाज्म में से जाकर वो अमाइनो एसिड लाएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ लाकर अटैच कर देगा, यानी वहाँ पे ले आएगा ताकि पॉलीपेप्टाइड चेन में वो ऐड हो सके. Transfer RNA has a small region in its molecule comprising 3 nucleotides which is termed as anticodon arm or anticodon triplet. This gives the transfer RNA a specific property to recognize the site of codon present over the
मैसेंजर आरएनए। सो यहाँ पर अब आप इसका स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ से अब आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्यों हमने इसे कहा था क्लोवर लीफ स्ट्रक्चर। अगर हम इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर देखें तो वहाँ से हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हम इसे क्लोवर लीफ लाइक स्ट्रक्चर क्यों कहते हैं। दूसरी बात आप यहाँ पर देखें कि बहुत से डबल स्टैंडर्ड रीजन्स प्रेजेंट हैं विद इन ट्रांसफर आरएनए। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर होता है, अभी हमने एंटीकोडॉन की बात की थी, एक तरफ है इसका 5 प्राइम एंड है, तो ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेन ना, तो देखें एक तरफ 5 प्राइम एंड है, उसके बाद ये इस तरह से दरमियान में डबल स्टैंड कुछ रीजन्स हैं, और ये उसका है 3 प्राइम एंड। 3 प्राइम एंड पर आमतौर पर यही सीक्वेंस प्रेजेंट होता है, CCA। ये रीजन जो है यहाँ पर जो आपको लूप से नजर आ रही है, ये है एंटीकोडॉन, और ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है कोडॉन के। यही से तो इसको पता चलता है कि यहाँ पर मैसेंजर आरएनए के पास कौन सा सीक्वेंस है। तो मैसेंजर आरएनए पे जो 3 न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस है जिसको कोडॉन कहते हैं, ये इसका यहाँ पर ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री बेस सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जो है एंटीकोडॉन। लाइक अब ठीक है, आपको कोडॉन और एंटीकोडॉन और कॉम्प्लीमेंट्री का तो पता ही है ना। तो इस तरह से ये आप इसमें करें, लाइक वहाँ पर प्रेजेंट है AUG, ठीक है। आप सपोज कर लें मैसेंजर आरएनए पर प्रेजेंट है AUG, तो एंटीकोडॉन में क्या प्रेजेंट होगा, A की जगह आ जाएगा यहाँ पे यूरासिल, U की जगह उसका कॉम्प्लीमेंट है A आ जाएगा, U है, और G की जगह आ जाएगा C, ठीक है। यानी UAG यहाँ पर एंटीकोडॉन होगा। ये कोडॉन और एंटीकोडॉन जब मैच कर लेंगे, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, तो फिर ट्रांसफर आरएनए को पता चल जाएगा कि अच्छा मैंने ये अमाइनो एसिड लेकर आना है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे, और वो कोडॉन जिस अमाइनो एसिड को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, जिस अमाइनो एसिड को कोड कर रहा होगा, वो अमाइनो एसिड यहाँ पर इसके साथ अटैच होता है। ये इसका जो 3 प्राइम एंड है, यहाँ पर ये अमाइनो एसिड अटैचमेंट साइट है। अब यहाँ पर ये एंटीकोडॉन, ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है सेल का, और ये है इसका 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर।